scratching. She's wearing her shoes. Can't bear it. This Nimbu Pani will stay. Stay. अब मतलब कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे? Aesthetics पूरे वो करके अब सब फैल गया, मोबाइल आ गए, नींबू पानी आ गया। मोबाइल किसका है? Silence, please. Silence. Yeah, rolling. दैनिक जागरण के दर्शकों को नमस्कार। अब तक आप लोगों ने सास बहू की साजिश लड़ाई वगैरह बहुत सी देखी होगी। सास बहू के मिलकर बिजनेस चलाते हुए आप सास बहू और फ्लेमिंगो शो में देखेंगे। आज मेरे साथ हैं सास बहू और फ्लेमिंगो की 3 बहुएं और इस शो के डायरेक्टर होमी अज्जानिया जी। तो सबसे पहले एक बेटी जी, 2 मैं बड़ी है छोटी जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ही रहेगा। नॉर्मली अगर हम शो की बात करते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि जब इस तरह की बिज़नेस की बात होती है, ड्रग्स वगैरह या इस तरह की नशीली दवाओं की बात होती है, तो कहा जाता है कि घर की औरतों से छुपाया जाए और मर्द ज़्यादातर इस तरह के धंधे करते हैं या फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है। बट इस शो में मुझे ठीक उल्टा दिखा। घर के लोगों को कुछ नहीं पता है, जो 2 बेटे हैं वो बाहर हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो घूमते झूमते आते हैं। बट जो बहुएं हैं वो सारा धंधा देख रही हैं, माँ देख रही है, वो सारे। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे डेवलप होता है, क्या इसके रीज़न थे? रीज़न तो ज़्यादा मैं सोचा नहीं। फॉर मी इट वाज वेरी नॉर्मल दैट द women are running the show। तो स्टीरियोटाइप है कि what you said the other way around कि the men go out and the women don't know। So I mean I just wanted to flip it on its head and it could easily be the other way around। वही तो है। जी जी जी। बट कहीं इसका कुछ पर्सनल कुछ देखा हो, सुना हो, कुछ इस तरह की No, कुछ चीज़ें? my mom actually is not at all like this। She's not like Savitri. It's a little bit। I mean, she's trying to cut my tongue off for one reason, for other reasons, but no, there was nothing personal। There was nothing personal, लेकिन I've always grown up in a very sort of gender equal household। I was never taught that there's a difference between men and women, and sadly, as I grew up, I realized there is a huge difference, but it never sort of came into my life in any way। The women in my family have always been extremely strong and have always done exactly what they wanted to do, like the men in the family। So for me, it was never a case of, oh, I'm doing something different, or till I realized that yeah, okay, the world outside is not the same, and it is a bit of a flip of ki stereotype ऐसा है, and I've done exactly the opposite। जी, आप तीनों का कैरेक्टर मैंने देखा, तो आप अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर को क्या बोलेंगी? पॉजिटिव बोलेंगी, नेगेटिव बोलेंगी? किस तरह से आप अपने कैरेक्टर को डिफाइन करेंगी अगर इन टर्म्स ऑफ उसको शेड्स के बारे में बात करें तो? कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं है इंसान। आई मीन एक दिन में आप कितने इमोशंस से गुजरते हो, तो कभी आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलोगे ना अपने आप को। तो वही है, आई मीन सारे कैरेक्टर्स, सबके सीक्रेट्स हैं, सबके स्केलेटन्स है क्लोजेट में, एंड कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। यू नो, it's like that। I don't think there is a black and white। But I think it's important to state here that it's not that we are saying that the women in the show are doing the right thing। Right। We are showing what the women in the show are doing। It's a fictitious world। They are doing this, and this is what their world is। It's a lawless place that doesn't really exist, and they're living by their own rules। तो ये सही है, गलत है, we are never taking sides, and even the story is not saying कि नहीं ये सही है कि ये ऐसे करना ही चाहिए क्योंकि that is what the circumstances are, so therefore there's no other way। This is what they do, and at no point are we even from a storyteller point of view, it's never saying that कि ये सही है, ये सही नहीं है। Compared to in real life, no one would accept something like this। It's fictitious, and that is, but at no point are we saying कि judge them either as right or wrong। Right। Judge them in the world they are in, which is not a real world, but in this world that they are in, that is how they are।
It is what it is. जी, तो राधिका अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताएंगी? मैं बेटी प्ले कर रही हूँ। वो जी बहुत ही सबके मुझे लगता है कोई भी ब्लैक एंड वाइट आपको कैरेक्टर नहीं मिलेगा, सब ग्रे में ही मिलेंगे क्योंकि वही हम असली की लाइफ में भी होते हैं। हम एटलीस्ट अंदर से होते हैं, दिखाए चाहे कुछ और। तो शांता केमिस्ट है एंड और काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी सेल्फ अश्योर्ड है। थोड़ी मैं ये भी नहीं बोल मतलब कम वर्ड्स बोलती है, सारी कॉन्वर्सेशन अपने दिमाग के अंदर करती है, कम बोलती है पर जो बोलती है दमदार बोलती है। और एंटाइटल्ड है, काफ़ी कूल है और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको प्ले करके। राधिका से काफ़ी डिफरेंट है तो उसको एक्सप्लोर करके और मज़ा आया। तो बस जी, अगर आपकी फिल्मोग्राफी देखते हैं तो मतलब एक होता है कि ट्रेडिशनल एक्ट्रेस या हीरोइन जो एक पहले नाम दिया जाता था कि रोमांस करना है, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। बट आपकी फिल्मोग्राफी बिल्कुल अलग रही है। फिल्मों का लेके सिलेक्शन मतलब इस तरह के कोई एक्टर थे मतलब जो सिर्फ कॉमर्शियल इस तरह के एक्टर्स गाने गाए, रोमांस करे, इस तरह की ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं रहा। तो क्या ये कॉन्शियस डिसीजन रहा है कि इसी तरह की फिल्में करनी है या फिर क्या? जी, मैं अपने आप से बस एक ही सवाल पूछती हूँ हर बार हर फिल्म के बाद कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है, इसीलिए मैं एक्टर बनी हूँ, वरना मैं नहीं बनती। तो मैं कभी भी एक ज़िंदगी दोबारा नहीं जीना चाहूँगी। तो अगर मैंने जैसे हमारी इंडस्ट्री का थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको एक चीज़ में देख लेते हैं ना तो आपको वही चीज़ें ऑफर करते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा, चाहे आप कुछ भी नहीं है तब भी आपको थोड़ा दम लगा के बोलना होता है कि नहीं। तो जब मैंने पटाखा करी थी तो मेरे पास सिर्फ गाँव वाले रोल्स आ रहे थे। फिर मैंने अंग्रेजी करी तो मेरे पास सिर्फ बच्चों वाले रोल्स आ रहे थे। फिर मर्द करा तो सिर्फ एक्शन करते थे। तो उस टाइम पे अगर आप बोलेंगे कि नहीं, वो बहुत ही आपको अपने दिल पे पत्थर रख कर करना होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि एक तो तुम्हें काम दे रहे हैं, तुम बाहर से आई हो, तुम कहाँ से आप सर्वाइव करोगे। एक तो तुम्हें काम देना, थैंक यू बोलने की जगह तुम नो बोल रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अलग अलग ज़िंदगी जीनी है। तो वो एक थोड़ी टफ जर्नी है, थोड़ा जिगरा रखना पड़ता है, बट हो जाते हैं तो हो ही जाता है। तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी भी मानूंगी, फॉर्चुनेट मानूंगी कि मुझे मौके मिले अलग अलग किरदार निभाने के। और आई होप आगे भी इतनी हिम्मत हो मेरे अंदर कि मैं उतना ही चांसेस ले पाऊँ और गिरने से कभी ना डरूँ। जी, ईसा, मिर्ज़ापुर में आपके कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला एंड उसमें एक सशक्त कहें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो हुआ। इस शो में भी वैसे ही कुछ कैरेक्टर शो हो रहा है जो खुद की डिसीजंस लेती है या फिर अपनी एक सोच रखती है। तो आपके हिसाब से कैरेक्टर का चुनाव ये क्या कुछ वो कहते हैं प्राथमिकताएं क्या होती हैं, प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? कैरेक्टर चुनने के लिए हाँ जी, हाँ जी। स्क्रिप्ट अच्छी हो तो चुन लेते हैं। तो कुछ और कैरेक्टर वाइज में ये देखते हैं कि ये सशक्त है या फिर ये स्ट्रॉन्ग है या ये एम्पावर्ड है, इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या? जी, जब मिर्ज़ापुर आया था तब उससे पहले कोई काम नहीं मिल रहा था और मिर्ज़ापुर जब इतना बड़ा शो था कि अगर मुझे उसमें 5 मिनट भी मिलता, मैंने तो 5 मिनट में भी हाँ बोल दिया था। जब मैंने स्क्रिप्ट खोली, मैंने देखा माधुरी यादव क्या है, तो मैंने अपने आप को बोला कि अच्छा फाइनली कुछ आया है, मज़ा आएगा करने में। और वो थैंकफुली क्लिक हो गया, तो मेरी किस्मत अच्छी है। और फिर उसके बाद बिजली मिली है जो बहुत ही एक मेरे हिसाब से एक चोट खाई हुई बिल्ली औरत है और काफ़ी तेज़धार औरत है, मेजर्ड है। तो मुझे बहुत मज़ा आया और दोनों का अग्रेशन बहुत अलग है। ऐसे लगता है दोनों स्ट्रॉन्ग औरतें हैं बट बहुत अलग अलग औरतें हैं ये। दोनों का अग्रेशन बहुत अलग है, दोनों की दुनिया बहुत अलग है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ वैसे तो है नहीं बट है भी। इस शो में एक चीज़ जो कॉमन आप तीनों के अंदर लगी फीमेल एक्शन को लेके, पिछले अगर 3-4 साल की बात करें तो उसमें उससे पहले की जो हिंदी सिनेमा में फिल्में फीमेल एक्शन थे उससे काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं। चाहे कंगना हो, प्रियंका हो, दीपिका हो, सब एक अलग लेवल के एक्शन करते नज़र आ रहे हैं। तो अब के दौर में एक्शन को लेके फीमेल्स को किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ संभावनाएं आगे फ्यूचर में क्या कुछ उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ देखती हैं? ये शो में बहुत रॉ एक्शन है एक्चुअली, ये बिल्कुल पॉलिश नहीं है बिकॉज उनकी दुनिया बहुत रस्टिक रॉ रियल दुनिया है, इसलिए एक्शन भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक OTT के साथ बहुत सारा कंटेंट एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, बहुत सारी नई कहानियाँ देखने को मिल रही हैं, तो मुझे लगता है ब्राइटर है ब्राइटर। राधिका कुत्ते में भी आपका एक्शन था और इसमें भी एक्शन है।
पटाखा में भी किया था एक्शन, बट वो पटकी पटका वाला एक्शन था। जी मतलब कुत्ते में तो बिल्कुल एक्शन नहीं था। अगर आप देखेंगे मैं सिर्फ कांपते हुए हाथ से बंदूक उठा रही हूँ और जिसकी बस की है नहीं चलाने। तो कुत्ते में एक्शन नहीं था। पटाखा के अंदर मैं गोबर मार रही थी उसे। वो थोड़ा वो गांव वाला जी जी जी, मैं बोलूँगी मैंने मर्द में एक्शन करा है फॉर श्योर, जिसकी ट्रेनिंग मुझे लगता है सास बहू में काम आई, क्योंकि आपकी बॉडी ने अगर एक बार सीख ली होती है तो एक मसल मेमोरी होती है, आप याद कर लेते हैं आपको, बट एक अंदर एक चाहत भी होती है कि आप उसको अलग लेवल पे भी लेके जाएं। तो आगे मेरे को एक्शन बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल इसमें वो नहीं करूँगी कि ओ मैंने एक बार एक्शन कर लिया मैं दोबारा नहीं करूँगी, नहीं मैं दोबारा करूँगी। मुझे बहुत पसंद है एक्शन करना, और आई होप वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर एक फुल फ्लेजेड एक्शन फिल्म मिले, एंड मैं एक्शन को अलग लेवल पे लेके जाऊँ। और मुझे खुद अपने स्टंट्स करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे को डर लगता है कि वो ठीक से मार नहीं खा रही, मेरी बॉडी डबल ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो मैं खुद करूँ, अलग लेवल पे लेके जाऊँ और बस सीखना है। और अंगिरा, आपके लिए फीमेल एक्शन का किस तरह से अपॉर्चुनिटीज देखती हैं आगे इंडियन सिनेमा में, या फिर किस तरह से और आगे इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है? काफ़ी ब्राइट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस इज़ माई सेकेंड आउटिंग विथ एक्शन रियली। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ब्राइट है फ्यूचर, बहुत एंड ऑडियंसेस देखना पसंद करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वी हैव कम टू दैट प्लेस नाउ in Bollywood and in the business where people like to see women fighting, so that's good. जी, होमी सर, आपकी फिल्मों की अगर बात करें तो 2005, 12, 14, 2005, 2012, 2014, 20 That's and now a 20 Kundali. अब आ रही है प्रोजेक्ट्स। That's your life there. हाँ, नहीं यार, 6 साल क्या किया? अंग्रेजी का हुआ। अंडरवाटर डाइविंग 6 साल। Hibernating. 20? Like a fish. 6 years? Wow. Yeah. Was I living life, हमें भी baby? लाइफ चाहिए यार, बहुत कूल लाइफ सो है। इतना गैप रहा है फिल्मों को लेके, क्या कहा जाता है कि आपको टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है अपनी फिल्मों को लेके, क्या कुछ वजह नहीं 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 नहीं, nothing like that. रेगुलर जो गैप मैं फिल्म बनाता हूँ जब मुझे बनाना है, बस. I don't think of any. There are many other things I do in my life which I enjoy doing, and when a story needs to be told, I tell it. Yeah. But saying that, I've just finished. I just wrapped up another feature film. So now I'll start working a little more often. Now that I've become old. जी, 29 को इरफान सर की डेथ एनिवर्सरी है, एंड आप दोनों ने उनके साथ, उनकी आखिरी शायद फिल्म थी, तो आप दोनों ने काम किया था। इरफान सर की कोई एक ऐसी खासियत जो आप लोगों के लिए ऐसा हो कि वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी? I think absolutely everything about him. I mean, I was lucky to be with him on the last. I mean, we walked a certain amount of our life paths together, and I think I will always cherish that. I mean, I have not seen an actor like that, and I've worked with some very, very good actors. I've had the privilege to work with the Nasirs and Pankaj Kapoors and Dimples and a lot of these guys, but this guy was unique. I mean, and I remember telling him when we did Angrezi, I said, because we had wished we wanted to work together since Namesake. And we used to keep talking about various projects and stuff, but nothing ever materialized. Kuch na kuch, he would have something else, or I would not be making films. But when this came, I said, ये opportunity को तो भी छीनना पड़ेगा. There's no way I'm going to let this go. And he said, and I told him also at that time, I said, hey yaar, you're not well, why are we doing this, relax. And he said, Omi yaar, मेरा craft से मुझे बहुत मोहब्बत है. I can't let this go, it's what keeps me alive. And the amount we laughed and cried during Angrezi Medium and really lived
I mean, lived every moment of that experience so fully. You can't do that. I mean, it's not something you can do. And I mean, for me, every moment was something I would treasure. It's not that कि एक हिस्सा है या that I can remember. I mean, I remember a lot of it, but it was just one of the most beautiful experiences, and I'm very, very consider myself very lucky to have been in that place at that time, to have this moment with him in my life. But yeah. राधिका, आप किस तरह से याद करेंगी या फिर कहें क्या कुछ गोल्डन मेमोरीज रही? जिस तरीके के वो एक्टर थे, जिस तरीके के वो इंसान थे, मैं यही बोलूँगी कि उनसे अर्नेस्ट स्टूडेंट मैंने लाइफ में नहीं देखा था। वो एक दिन पहले फिर भी घबराते थे, अगर इम्पोर्टेंट सीन है पूरे टाइम रिहर्स करते थे। बट मतलब एज एन एक्टर अगर मैं कहूँ, मुझे याद है कि एक हमारा सीन था होमियो, मैंने एक तरीके से रिहर्स करा था, दैट ड्रंक सीन, एंड उन्होंने हमने करा था और हमें सही लग रहा था। और फिर इरफान सर आए और उन्होंने बस बोला कि मैं पकड़ लूँगा। तो वो कभी कभी हम क्या करते हैं कि मूवी के लिए एक नॉच ऊपर कर देते हैं कि अरे ऑडियंस को पता लगेगा कि ये ड्रंक है या जैसी भी है, एक थोड़ा ऊपर बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा ऐसे लड़खड़ा के चल लेगी या जो भी होता है। लेकिन वो उसमें भी इतने सच्चे हैं कि वो झूठ आपका यूं पकड़ लेते हैं। जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा अपनी बेटी को, तब तक हम रिहर्स करते रहे। वो लेट गो कर सकते थे ना कि ठीक है मूवी के लिए वर्क कर रहा है, डायरेक्टर के लिए भी वर्क कर रहा है, बट एज अ पर्सन वो इतने ऑनेस्ट हैं कि वो बोलेंगे कि मैं तो अपने आंखों के सामने नहीं होते हुए देख सकता। तो जब तक मुझे ऑनेस्टी फील नहीं होती, जब तक मुझे सच्चाई नहीं दिखती, तब तक हम रिहर्स करेंगे। और तब तक हमने करा, और फिर उनको जब फील हुआ कि हाँ मैं नहीं पकड़ सकता, झूठ नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तब तक हम कर रहे थे। तो वो एज एन एक्टर मैंने उनसे सीखा कि सिर्फ डायलॉग बोलने के लिए डायलॉग मत बोलो, सिर्फ इफेक्ट डालने के लिए कुछ मत करो, जब तक अंदर से नहीं आता मत बोलो। दिल से जब आए, जब सच्चा फील हो वो करो और किसी की मत सुनो। जी, एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से। जैसा राधिका आपने कहा कि इंडस्ट्री में जब आप एक पोजीशन पे आ जाते हैं देन ना कहना भी आना चाहिए प्रोजेक्ट्स को। ना कभी कभार ये भारी भी पड़ता है, कभी आप बड़े प्रोड्यूसर्स को छोटे रोल्स के लिए ना बोल देते हैं एंड देन काम आने भी कभी कभार बंद हो जाते हैं। तो आप तीनों के लिए ये ना कहना वो किस तरह से रहता है और क्या कैसे वो समझना, वो करना, वो किस तरह से वो कॉन्फिडेंस आता है ना कहने का, क्या चीज़ें होती हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अगर मुझे ना बोले तो मुझे बुरा लगेगा। तो आई थिंक वही कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं आपको ना बोलती तो शायद आपको भी शायद इतना बुरा नहीं लगेगा। दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। एंड आई थिंक अभी इतने सालों के बाद ऑडियंस इवॉल्व हो गई है, मेकर्स इवॉल्व हो गए हैं। आई थिंक इट इज़ मोर इंक्लूसिव एंड इट इज़ मोर एक्सेप्टेड also, I feel, because everybody is changing with time. Initially जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लोग कहते थे कि you can't say no, or you can't say no on. I have said no on the phone, but because I did not know any better, like I had to go there and I should have gone there and said no, and that was my fault probably on the hindsight. But मुझे ऐसा लगता है कि आजकल it's gotten better. We are in a very good place, I feel. I have मैंने जितना मैंने ना बोला और लोगों ने ठीक से नहीं लिया है, और वो चीज़ मुझे भी बहुत, मेरे को भी लगता था कि मेरे को कोई ना बोलेगा तो मैं भी तो नहीं बुरा मानूंगी क्या लेकिन फिर मैंने ना बोला और उन्होंने बुरा माना तो फिर काम नहीं दिया, फिर काम नहीं, फिर वो भूल जाते हैं जैसा भी होता है। बट क्या आप क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं तो यही बोलती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ पहली बात ना बोलने में, बहुत ही बुरी हूँ। मतलब मैं कर दूंगी शायद आपके लिए बट मुझे बहुत अपने आप को समझा के करना पड़ता है कि अंदर से नहीं आ रहा तो प्रोजेक्ट के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं वही बात जाके बोल देती हूँ उनको, मे भी कि मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को समझाने के लिए कि मैं कर लूँ, पर वो नहीं हो पा रहा तो मैं इसलिए नहीं कर पाऊँगी। अब उसको वो जैसे भी ले ले बट ज़्यादा टफ तब होता है जब आप इस्टेब्लिश्ड नहीं हैं। मेरे को शुरुआत के दिनों में बहुत होता था कि
है कौन और होती कौन है मना करने वाली। तो ईगो आपको उस चीज़ का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप अपने काम के साथ सच्चे हो, उस सच्चाई के साथ चलना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ बट मेरे लिए सच नहीं है, मेरी सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ। मेरे पास कुछ इतना काम नहीं आ रहा है कि मैं ना बोल पाऊँ। तो ज़्यादा नामा का चॉइस नहीं है मेरे पास, बट जितना आ जाता है, मैं अगर मुझे नई मटेरियल समझ आता है तो मैं प्यार से मना कर देती हूँ। एंड आई थिंक अगर आप प्यार से बोल दो तो मोस्टली लोग ईगो पे नहीं लेते हैं, है ना। आप सिंपली कम्युनिकेट कर दो। अगर आप भी टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के उनको वेट करा के 2 महीना 3 महीना आप भी रफू चक्कर हो रहे हैं तो किसी को गुस्सा आएगा। तो आप प्यार से सिंप्लिसिटी के साथ आप बोल दीजिए पोलाइटली किसी को, तो आई डोंट थिंक इतना बुरा मानते हैं। जी जी। आप तीनों एज अ बहू खुद को कैसे डिफाइन? बेटी मैं तो बेटी हूँ, ये दोनों। मैं तो कह रही हूँ सास बहू फ्लेमिंगो आप देख लीजिए। मैंने देख लिया है। 5 मई को मैंने देख लिया है। 8 एपिसोड 2 एपिसोड देखे। अब 8 दो देखे ना। एपिसोड अभी और 5 मई को आप सारे देख लीजिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार हाँ। पर। मैं तो ये कह रही हूँ That's your cue. Blood. हाँ। बिल्कुल। जी हमें सर इसका नेक्स्ट सीजन पे आने की पॉसिबिलिटीज है? नहीं जी, I can't think that far. आज में जीते हैं वो, आज में, और आज होमी को नहीं लगता, शायद कल लग जाएगा। It's possible. पॉसिबल। Possible. तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, संभावना पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज राइट। possibility always है ना. Always be open to possibilities. थैंक यू सो मच। 5 में सास बहू फ्लेमिंगो Disney Plus Hotstar. थैंक यू सो मच। Thank you. All the best आपकी Thank you, show के लिए। sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम राम।